सर आवाज नहीं आ रही है। Now the voice is there? Is there? यस सर। Okay, okay. ठीक है। तो देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट क्या फीचर क्या था? फर्स्ट, इट वाज स्टार्टेड अराउंड मिड 1860s, मतलब 66 में शुरू हुई थी, मिड 1860s में शुरू हुई थी। दूसरा खास बात थी कि इट वाज एंटी अलीगढ़ मूवमेंट, या उससे पहले जो सैयद अहमद खान के विचार थे। ओके। और तीसरा बात है, ये थोड़ा सा देवबंद मूवमेंट के बारे में मिक्सचर है। ये मिक्स मूवमेंट थी। मिक्स मूवमेंट का मतलब क्या था? ये कुछ मामलों में रिफॉर्मिस्ट थी, कुछ मामलों में ये मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट थी, बट कुछ मामलों में ये क्या थी? रिवाइवलिस्ट थी। ओके। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, द टीचिंग ऑफ इस्लाम शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। ओके, प्योर टीचिंग ऑफ इस्लाम, प्योर टीचिंग ऑफ इस्लाम, यू आर गोइंग बैक। मतलब ये नहीं कहा इन्होंने कि, एंड one another peculiar feature of this movement, that it called for jihad against Britishers। चार ऑप्शन दे देगा: कदियानी मूवमेंट, बरेलवी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट। लेकिन इनमें से कौन सी मूवमेंट ने जिहाद कॉल किया था? तो जिहाद देवबंद मूवमेंट ने कॉल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जैसे अलीगढ़ मूवमेंट थी मुस्लिम मूवमेंट की, देवबंद मूवमेंट इज, मतलब इससे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हेडिंग डाली क्लास देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट, ठीक है। देवबंद मूवमेंट was another socio religious movement, was another socio religious movement, started in the Muslims, started in the Muslims, this movement was started by Rashid Ahmad Gangohi, by Rashid Ahmad Gangohi, Rashid Ahmad Gangohi and Ulema Muhammad Qasim Nanotawi, and Ulema Muhammad Qasim Nanotawi at Deoband in Saharanpur district in 1866, at Deoband in Saharanpur district then northwestern province, then northwestern province, जब नॉर्थ, उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बाद में यूनाइटेड प्रोविंस बना, और यूनाइटेड प्रोविंस ही आज का उत्तर प्रदेश है। ओके। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से यूनाइटेड प्रोविंस का नाम किस वायसरॉय ने चेंज किया?
वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। ओके, कर्जन ने चेंज किया था। ओके, लिख रहे क्या? द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज, द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज resuscitating resuscitating the classical Islam, the classical Islam, and improving the spiritual and moral condition of Muslims, and improving the spiritual and moral conditions of Muslims, and improving the spiritual and moral conditions of Muslims. The movement also aimed to proliferate. The movement also aimed to proliferate the teachings of Quran and Hadith. The teachings of Quran and Hadith. What is Hadith? इससे पहले भी बता चुका हूं। Sir, Prophet Muhammad's life teachings or life lessons Life lessons. means the practices that he followed in his daily day-to-day life, and his disciples, they inferred from those Actually, practices. Hadith is nothing but the interpretations, various interpretations you can say, because those interpretations are based on the life of Paighambar Muhammad Sahab. Okay, so Hadith are the different type of interpretation of Quran. Okay, which is based on the life lessons of Prophet Muhammad. Okay, तो ध्यान रखिएगा, Quran and Hadith. It also called for jihad. It also called for jihad against the foreign domination. ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रिटिश, against the foreign domination, against the British. This movement got a boost. This movement got a boost. Got a boost. BOOST. Got a boost when Darul Ulm, when Darul Ulm was established, when Darul Ulm was established at Deoband, Darul Ulm was established at Deoband on 13th May 1866. 13th May 1866 by Fazlur Rahman Usmani, by Fazlur Usman Rahmani, Fazlur Usman Rahmani, Sayyid Muhammad Abid, Sayyid Muhammad Abid, Mehtab Ali Muhammad Abid, Sayyid Muhammad Abid, मेहताब अली, उर्दू में मेहताब चंद्रमा को कहते हैं, मेहताब अली 30 मई 30 मई, ओके। मेहताब अली
and Zulfikar Ali and Zulfikar Ali and Zulfikar Ali. Full stop. महमूद देवबंदी, महमूद देवबंदी, महमूद देवबंदी Mahmood Devbandi was appointed as the first teacher full stop. The Devbandi movement also focused to propagate the teachings of Islam in schools. Propagate the teachings of Islam in schools. अब ये सब यूपीएससी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे. अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. इस्लाम इन स्कूल्स, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम इन स्कूल्स. अभी तो आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिख रहा है. जब यूपीएससी में एग्जाम में ये स्टेटमेंट आएगा ना कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं ऐसा कहा था, मतलब था या नहीं था. इसलिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यूपीएससी क्वेश्चन अगर कभी सॉल्व करना चाहते हो तो कल्टिवेट अ हैबिट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस को समझ कर चलोगे, यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे. और जैसे मैंने कहा, यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन करोगे क्लास, पीसीएस तो आप जेब में लेके घूमोगे. पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस इतना टफ है नहीं. ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन. This movement was against the Sayyid Ahmad Khan ideas. This movement was against the Sayyid Ahmad Khan ideas. खान आइडियाज. हाँ, वो कह रहे थे कुरान का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो. ये कह रहे कुरान का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है? कुरान तो पुराने को रिसर्च क्रिएट कर दिए ना. ओके, क्लासिकल इस्लाम, मैंने कहा क्लासिकल इस्लाम को इनको फोकस था, जो पुराना इस्लाम था, रियल इस्लाम. और सईद अहमद खान का कहना था कि कुरान को आज के समय में नए तरीके से इंटरप्रेट करिए. कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब हुए थे तो तब एक अलग सोसाइटी थी, तब एक अलग एरा था. आज का सिस्टम अलग है, आज की सोसाइटी अलग है, तो आज अलग तरीके से इंटरप्रेट करिए. तो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द सैयद अहमद खान आइडियाज. ओके, सैयद अहमद खान आइडियाज एंड लेटर ऑन अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट and later on against the Aligarh movement. Muskan, could you please switch on the leftmost switch? Yeah, thank you. And was against the Aligarh movement. However, this movement was inspired from Shah Waliullah Wahhab ideas. Shah Waliullah Wahhab ideas. ब्रैकेट में लिख लो वहाबी मूवमेंट. शाह वलीउल्लाह वहाब आइडियाज, ब्रैकेट में लिखो वहाबी मूवमेंट. कुछ बता सकते हैं सर मानव जी? अभी ने पूछा ना ब्रैकेट में क्या लिखना है वहाबी मूवमेंट के बारे में. अरे सर मैंने तो पढ़ाया वहाबी मूवमेंट. किस चैप्टर पढ़ाया ये बता दो. क्या बात कर रहे हो, अभी आप थे? नहीं अभी नहीं, 2 दिन नहीं पहले पढ़ाया मैंने, कुछ समय पहले पढ़ाया है. तो देखो
आगे चल के जब आप लोग थोड़ा सा, वैसे तो यू पीपल आर मैच्योर एनफ, आगे चल करके जब कभी आप लोग में से जो लोग कोई है जो वकालत, अच्छा आप तो वकील भी हैं, ओ सॉरी मैं तो भूल गया था, लॉ तो के तो है ही ना, लॉयर लॉ तो कर रखा है ना। तो कानून में कहा जाता है कि कानून में एक होता ना, एक शब्द होता है डीम्ड, डीम्ड, once you have got the access of ISC app, it is being deemed that you have covered the topic, not syllabus dear, I know syllabus तो यूपीएससी का बहुत बड़ा है, okay, it has been deemed that, मतलब it has been deemed मतलब ये समझा जाएगा कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, ओके। तो कुका वहाबी मूवमेंट एज बच्चों कहाँ मैंने पढ़ाया था वहाबी मूवमेंट, रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट में पढ़ाया था वहाबी मूवमेंट, सऊदी अरेबिया से हो गया, ओके। तो सर थोड़ा देखिए, ओके, हाँ सऊदी अरेबिया के वहाब। तो ये दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ शाह वली उल्लाह वहाब। ये शाह वली उल्लाह वहाब ने ही वहाबी मूवमेंट शुरू की थी, वहाबी, ओके। लिख लीजिए क्लास, और आपको बता दो क्लास, क्योंकि लोअर पीसेस का रिजल्ट आ चुका है और अपर पीसेस का रिजल्ट सुनने में आया इस हफ्ते कभी भी आ सकता है, मतलब इस हफ्ते कभी भी आ सकता है, मतलब मेंस का। तो इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं नेक्स्ट पीसीएस के लिए, तो लोग तैयारी करना शुरू कर गए हैं। अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड एक अपना अलग ही लेवल से लेता है कि नेक्स्ट पीसीएस अभी आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, फिर कब प्रीलिम्स होगा, और फिर वो चीज, पर इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं। तो इंक्वायरीज अब उन आप में, और जो इंक्वायरीज आ रही हैं, अगर आपने अपनी एडवांटेज को अपनी पावर नहीं बनाया, यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। अब जो आ रहेंगी इंक्वायरी जो आएंगी, वो अब भले ही आप 1 महीने पुराने एडमिशन हैं, या कुछ लोग 6 महीने पुराने एडमिशन है, कुछ लोग 1 साल पुराने एडमिशन है, क्लास अगर आप एलिजिबल हैं तो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस इज नॉट लाइक उत्तर प्रदेश पीसीएस कि आपको हर साल देगा। उत्तराखंड इस साल अगर सपोज, वैसे इस साल जहां तक मेरे अपना पर्सनल व्यू है, अपना पर्सनल व्यू, अगेन मैं कोट करके बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू है, इस साल वो लोअर पीसीएस ही निकालेगा साल के एंड में, अपर पीसीएस वो अगले साल निकालेगा। बट मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको खबर लग रही है कि शायद पीसीएस कार्ड्स पे है अपर पीसीएस, तो सर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखो यहाँ पे आप लोग में से काफी लोग मतलब पहले से तैयारी कर रहे हो, तो हम ये चाहते हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, इतनी तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जाम आए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचे, ओके। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई नया एडमिशन आए और मेरे पुराने स्टूडेंट्स को हरा दे, ओके। तो तैयारी करिए क्लास, क्योंकि अपर नहीं सही तो लोअर तो इस साल है, मतलब लोअर का नोटिफिकेशन तो है, अब एग्जाम इस साल लेते हैं नहीं लेते, पर लोअर तो इस साल है नोटिफिकेशन का, ओके। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए सर, यही सब चीजें पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ अमूमन उत्तराखंड पीछे 3.5 साल बाद देता है, तो अगर अगर 2025 में आता है तो मान के चलिए 2028, और अगर 24 में आता है 27, मतलब 3 साल लेता है उत्तराखंड पीसीएस। ये उत्तराखंड पीसीएस का मतलब एक विडंबना कह लीजिए, एक कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, फीचर कह लीजिए, 3 साल, मतलब 3 साल और 3 साल मैं कह रहा हूँ, 3.5 साल लेता है। भाई 2021 में आया था, और 24 में अगर रिजल्ट आता है, जुलाई अगस्त तक सुनने में आया रिजल्ट आएगा, मतलब या अप्रैल मई तक आएगा रिजल्ट, तो 24 में, अगस्त 24 में आया था, तो 21 में आया था, अगस्त 21 में आया था, और मैं 2024 में दे देगा अप्रैल मई में, तो 3 साल लेता है, ओके। तो आप लोग में से जो लोग एलिजिबल हैं, ओके, तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। पर जहां तक मैं अपना समझता हूँ, ये लोअर पीसेस इस बार देंगे एक साथ दोनों पीसेस। पिछली बार तो क्या था, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस कार्ड्स पे थे, तो दोनों पीसेस एक साथ दे दिए थे। इस बार ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें 2027 का भी देखना है, तो 2027 में स्टेट इलेक्शंस हैं, और फरवरी में स्टेट इलेक्शंस हैं, तो 2025 में ये अपर पीसीएस डालेंगे, और उसका एग्जाम 26-26 में आसपास कहीं लेंगे, ओके। और लोअर पीसीएस
इस साल नोटिफिकेशन आ जाएगा और 25 में प्रीलिम्स होगा लोअर पीसीएस का। यही कुछ इसी तरीके से रखने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो पिछले के जो 5 पीसीएस हुए हैं उसका यही देख सकते हैं। ओके, तो सर जो पुराना पढ़ा चुका हूं वो रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, लिखे क्लास। नेक्स्ट लाइन, द आइडियाज ऑफ शाह वलीउल्लाह वाहब। देवबंद मूवमेंट welcomed the formation of Congress in 1885. Dewan movement welcomed the formation of Congress in 1885, and on the other hand it condemned, and on the other hand it condemned, and on the other hand it condemned समझते हैं ना, भत्सना की, condemned the formation of United Indian Patriotic Association. United Indian Patriotic Association किसने फॉर्म की थी? सैयद अहमद खान। और कहाँ के थे बस ये बता। बनारस के। ओके, वेरी गुड। राजा शिव प्रसाद। हाँ, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन एंड मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस एंड मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस established by Sayyid Ahmad Khan. Established by Sayyid Ahmad Khan. It even issued fatwa against the organization. It even issued fatwa against the organization. Against the organization. देखिए, the Deoband movement created political awakening among its followers. And some of them like Maulana Abul Kalam Azad, among its followers, and some of them like Maulana Abul Kalam Azad. I hope. Okay. इनकी किताब का नाम कोई बता सकता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। विंग्स ऑफ फायर, बेटा विंग्स ऑफ फायर तो एपीजे अब्दुल कलाम की। कोई बात नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम कई बार एग्जाम में आया है, पर फिलहाल मैं नेशनल मूवमेंट में बता दूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद देवबंद के छात्र थे। played an important role in the national movement. Another personality, Mahmudul Hasan from Deoband. Mahmud Al Hasan from Deoband was of the view that the religious ideas should be integrated with politics.
ideas should be integrated with the politics. Integrated with the politics. The followers of Devbandi, ये भी इंपॉर्टेंट है. The followers of Devbandi was against the partition. The followers of Devbandi was against the partition. They stood for United India. Was against the partition. They stood for United India. फर्स्ट स्टॉप. मुस्लिम लीग का नहीं, ये कांग्रेस को सपोर्ट करते थे. ओके, एक्चुअली दे वर एंटी ब्रिटिश क्योंकि मुस्लिम लीग वाज प्रो ब्रिटिश. तो वो ये मेन डिफरेंस वही था. मुस्लिम लीग प्रो ब्रिटिश थी. ओके, तो ये जब ये एंटी ब्रिटिश थे तो इन्होंने शुरुआत, कांग्रेस जब बनी, फिलहाल ये तो पहले ही बन गए थे, 1866 में बन गए थे. कांग्रेस 1885 में बनी, 20 साल बाद. तो जब कांग्रेस बनी, दे वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस. फिर उसके बाद जब सैयद अहमद खान ने प्रो ब्रिटिश अप्रोच अपनाया, दे कंडेम्ड सैयद अहमद खान. ओके, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग दे हैव अ क्लियर आइडिया दैट वी शुड अपोज द फॉरेन रूल. ओके, अब उसे आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया मूवमेंट. देखिए, द अहमदिया मूवमेंट which is also known as Qadiani movement, which is also known as Qadiani movement. Qadiani movement was founded by Mirza Ghulam Ahmad. Was founded by Mirza Ghulam Ahmad at Qadiani in Punjab. At Qadiani, Qadiani, at Qadiani in Punjab in 1889. 1889. तो ध्यान रखना, ये सारे मूवमेंट की क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा. इनमें सबसे पुरानी मूवमेंट है देवबंद मूवमेंट 1866, क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट तो बाद में बनी थी ना. इफ यू रिमेंबर, अलीगढ़ स्कूल का पहले तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी. किस ईयर में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था? 1822, 18 देख लो हैं. फाउंडेशन किस सर जो वाइसरॉय ने ले किया था? 1877. 1877. ओके, तो 1866 में देवबंद मूवमेंट शुरू हुई. तो अलीगढ़ स्कूल का 1877 में लिटन ने आपके फाउंडेशन स्टोन रखा था. अब कभी ऐसे ईयर भूल जाओ तो ये याद रखो कि लिटन ने फाउंडेशन स्टोन रखा था. अब लिटन का रूल कब रहा? 75 से 1881 तक रहा. तो ईयर तुम्हें इसी बीच में, अब ऑप्शन में देखना कौन सा ईयर है. ये चीज याद रखना कि अलीगढ़ स्कूल, जो आज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका फाउंडेशन स्टोन अलीगढ़ स्कूल के रूप में, एंग्लो मोहम्मदन स्कूल के रूप में लिटन ने ले किया था. लिटन लेड द फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ओके, और उस समय इन जमीन किसने दी थी? विलियम म्योर. ओके, विलियम म्योर. ओके, तो जो कि जिन्होंने आगे चल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी फाउंडेशन रखी थी. ओके, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है क्लास. यही चीज घूम फिर करके आती. आप लोग में से उत्तर प्रदेश जो पीसीएस अगले महीने दे रहे हो, आप देखोगे जो इतना मॉडर्न इंडिया पढ़ाया है, इनमें से कई क्वेश्चंस आएंगे आपके पीसीएस में. ओके, लिख लीजिए क्लास. नेक्स्ट लाइन, it referred
this movement referred itself this movement is referred itself as a standard bearer, as a standard bearer of Mohammedan Renaissance, of Mohammedan Renaissance, and like Brahmo Samaj, it founded itself on the principle of universal religion for all. It founded itself on the principle of universal religion for all humanity, universal religion for all humanity, comma, opposing jihad, all humanity, opposing jihad, its founder Ghulam Ahmad, called himself Mahdi. Mahdi मतलब मसीहा. Called himself Mahdi और मसीह and also called that he is the incarnation of Krishna. Yes. Also called that he is the incarnation of Krishna. अब इससे क्या हुआ, जितने ऑर्थोडॉक्स सुन्नी थे वो इनके जान के पीछे पड़ गए. ओके, मतलब ये इस मूवमेंट को सुन्नी फॉलोअर्स ने बहुत अपोज किया. मतलब खूनी रंजिश हो जाती थी, खत्म, सीधे कर देते थे. ओके, लिख लीजिए क्लास. दिस मूवमेंट स्पार्क्ड fierce opposition from Sunni mainstream. This movement sparked SPARKED, sparked fierce opposition from Sunni mainstream, because वहां पे तो कही जाता कुरान में कि no person can be worshipped other than Allah, la ilaha illallah Muhammadul Rasulullah. ओके, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनको वो यही बोलते थे कि एक ही गॉड को वर्शिप किया जा सकता है, एंड दैट इज अल्लाह. और यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं मसीह हूं, मैं मेहदी हूं, और मैं कृष्णा का भी इनकारनेशन हूं. तो सुन्नी चिढ़ गए कि हु आर यू. मतलब तो इसने काफी ज्यादा इस मूवमेंट की वजह से काफी ज्यादा मुस्लिम्स में, और एक चीज ध्यान रखना क्लास, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डाल दे, अहमदिया मूवमेंट भारत में जन्मी है. मतलब जैसे वहाबी मूवमेंट अरब से आई है. ओके, अहमदिया मूवमेंट का जन्म स्थल ही भारत है, क्योंकि ये डेफिनेटली कदियान मतलब पंजाब के एरिया में हुए थे, तो ये जन्म स्थल है. एंड सेकेंडली इट वाज लाइक अ लिबरल मूवमेंट. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट थी. तो एक ये भी रीजन था कि इन्होंने जो सुन्नी, जैसे मुस्लिम्स में होते हैं ना शिया एंड सुन्नी, तो शियाज आर बिट लिबरल and Sunnis are more orthodox. Okay, तो हैं, हाँ, तो आपके शिया जो है वो ईरान के एरिया के रहे हैं, और जो सुन्नी हैं जो आप मोस्टली तो वॉइस नहीं आ रही. opposition from Sunni followers. The movement sparked SPARKED, लिखा चुके हैं, the opposition of Sunni mainstream, and being accused of rejecting
being accused of rejecting the authority of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad, पैगंबर मोहम्मद, Prophet, Prophet, Prophet मोहम्मद। अब इनमें क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो बीइंग देवर आल्सो मुस्लिम्स, इनको पाकिस्तान चले गए। जब तक ब्रिटिश रहे छोटे मोटे झगड़े होते रहे, बट वंस दे वेंट टू पाकिस्तान, ओके सर, अहमदिया पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और बहुत परसिक्यूटेड मुस्लिम्स हैं। बलूचिस्तान इज नॉट एन अहमदिया, बट अहमदिया जो मिर्जा गुलाम अहमद को मतलब इनकारनेशन मानते हैं, वो तो इस्लाम के अगेंस्ट ही है भैया। तो जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम्स हैं, दे डोंट कंसीडर अहमदिया एज द ट्रू मुस्लिम्स। और पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड सेक्शन है, मुस्लिम्स का ही सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड सेक्शन आपके अहमदिया मूवमेंट। समझ में आया? अहमदिया एक अलग तरीके के मुस्लिम है जो कि मिर्जा गुलाम अहमद को अपना मतलब मैसेंजर मानते हैं। इस कारण से पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा परसिक्यूट किए जाने वाले सेक्शन है। जब तक ब्रिटिश रहे तो एक छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती रही थी, झगड़े होते जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स, बट वंस दे बिकम दे वेंट टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो मेजॉरिटी सुन्नी रहा था। ओके सर, गए तो ये था कि दिस इज अ लैंड ऑफ मुस्लिम्स, बट लैंड ऑफ मुस्लिम्स विल बी बिकम सच कंजर्वेटिव। इवन जिन्ना ने कहा था, जिन्ना का 1947 का उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कह दीजिए कि जो हुई बातें हुई उन्हें भूल जाइए, अब हमें अपना लैंड मिल गया है, अब सारे धर्म हमारे लिए बराबर रहेंगे। बट वो ये भूल गया था, जिस देश का जन्म धर्म के आधार पे हो, वो धर्म को कैसे भूल सकता है। जिस देश का, ये जिन्ना का स्टेटमेंट रहा है, यू कैन गो चेक थ्रू द गूगल, जिन्ना का स्टेटमेंट रहा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जैसे व्हेन दे गॉट द पाकिस्तान, उन्होंने पहला क्या कहा था, स्टॉप द कार्नेज, मतलब जो दंगे हो रहे हैं इसको रोको, रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, ओके। और अब हमें अपना पाकिस्तान मिल गया। एक्चुअली क्या, ही जस्ट वांट द पाकिस्तान, नथिंग, उसके और कोई एम नहीं, ही जस्ट वांट द पाकिस्तान। पाकिस्तान उसे मिल गया ड्यू टू द सपोर्ट, ड्यू टू द कोवर्ट सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। और फिर उसने ये कहा कि हमारे लिए सारे धर्म बराबर है, और उसकी बात सुनता कौन है? जिस देश का जन्म ही धर्म के आधार पे हो, वो धर्म को भुला कैसे सकता है? आज भी पाकिस्तान में, जैसे मैं कई बार कहता, 3 ए सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। अब अमेरिका की जगह सी ले लिया, AAC, अल्लाह, आर्मी और चाइना। 90 तक अल्लाह, आर्मी, अमेरिका था। पाकिस्तान की किसी भी फॉरेन पॉलिसी कर लो, 3 ए थे। अब 2000 से अल्लाह, आर्मी, चाइना हो गया, AAC हो गया, पहले AAA था। ओके, तो पाकिस्तान का के वही, इसीलिए पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, when majority of the Ahmadis moved to Pakistan after 1947, when majority of the Ahmadis moved to Pakistan after 1947, they were severely persecuted there, persecuted there, they were severely persecuted there. Many of the Sunni Muslims demanded that Ahmadis should be officially expelled.
that Ahmadis should be officially expelled from Pakistan and Muslim fold. From Pakistan and Muslim fold. Even then, Muslim fold. Even then, अब तक पाकिस्तान का कोई नोबेल प्राइज मिला है? जीके का क्वेश्चन. तो पाकिस्तान को नोबेल प्राइज, पाकिस्तान में कितने को नोबेल प्राइज मिला है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. एक को तो चलो मौलाना यूसुफजई. कौन सा मिला है? पीस का. वेरी गुड, एक्सीलेंट अभिषेक, एक्सीलेंट. पर उससे पहले भी एक पर्सन रहे हैं, उनको पाकिस्तान में फिजिक्स का नोबेल मिला है, अब्दुल समद. एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज अहमदी, और पाकिस्तानियों ने उनकी कदर नहीं की. जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पाकिस्तान. मतलब कभी आप ये चीज, मेरे को भी लिटरली गाइस ये सब चीजें मैंने पढ़ी नहीं थी. वंस आई सॉ ऑन द वन ऑफ द रील, जब रील में देखा तो मैंने सर्च किया, तो मालूम ये अहमदी थे. इस कारण से पाकिस्तान, मतलब उसमें यह था कि पाकिस्तानियों ने तो अपने यहाँ नोबेल प्राइज विनर्स की भी कदर नहीं की. मलाला यूसुफजई के ऊपर क्यों कह रहा था? कह रहा था बिकॉज उनका ये कहना था कि ये इजराइलों और अमेरिका के हाथों, मतलब ये इसने सेल कर दिया अपने आप को. ओके, तो वी आर अगेंस्ट मलाला यूसुफजई. और अब्दुल समद को इसलिए विरोध किया कि ही वाज अहमदी, और अहमदी के अगेंस्ट पाकिस्तानी बिल्कुल वो इन्हें मुस्लिम नहीं समझते. जस्ट लाइक हिंदूज, वो अहमदी को भी परसिक्यूट करते हैं. ओके, लिख लीजिए क्लास. द अहमदिया मूवमेंट, मैंने इवन देन, सर आपने वो हटा दे. ओके, लिखे. द अहमदिया मूवमेंट gave religious recognition to modern industrial and technological progress. Gave religious recognition to modern industrial and technological progress. To modern industrial and technological progress. It also aimed for reforming the Islam. It also aimed for reforming the Islam. Next लिखे क्लास. Prominent Muslim reformers. ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म होते हैं. Prominent Muslim reformers. देखिए क्लास, पहला नंबर 1 मौलाना शिबली नुमानी. हाँ, मौलाना शिबली नुमानी. इन्होंने लखनऊ में एक फेमस कॉलेज खोला, नदवा उल उलेमा, नदवा कॉलेज. ओके, मौलाना शिबली नुमानी. लिखिए 1873 टू 1938 टाइम पीरियड लिख लीजिए. 18 सॉरी इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए मौलाना शिबली नुमानी का. जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट. मैंने ये टाइम, ये उनको दूसरे का है. शिबली नुमानी, शिबली नुमानी का टाइम पीरियड लिख लीजिए 1857 to 1914. 1857 to 1914. 1857 to 1914. He was
Islamic scholar, philosopher, poet and historian. Scholar, poet and historian. He founded Nadwa ul Ulema at Lucknow. He founded Nadwa ul Ulema at Lucknow in 1894. Nadwa ul Ulema at Lucknow in 1894. With the objective of recasting Muslim education system, with the objective of recasting Muslim education system, reforming Muslim morals, recasting Muslim education system, comma, reforming Muslim morals, and putting an end to theological controversies within Islam. Putting an end to theological controversies within Islam. Initially, Nadwa College was founded in Kanpur. But in 1894, it was shifted to Lucknow. Nadwa College was founded at Kanpur. But in 1894, it was shifted to Lucknow. Next. Sayyid Nazir Hussain. Sayyid Nazir Hussain. Sayyid Nazir Hussain. He founded the sect Ahle Hadith. He founded the sect Ahle Hadith. People of Hadith. Ahle Hadith in Punjab. He founded the sect Ahle Hadith. That is people of Hadith in Punjab. In the mid 19th century. He was from Rai Bareli. This group considered only the hadith. Bracket में लिख लो saying of prophet. Saying, S-A-Y-I-N-G, saying of prophet. Bracket close. And Quran. As the only and ultimate authority on Islam. Quran as the only and ultimate authority on Islam. As the only and ultimate authority on Islam. And refuse to recognize of Islam. And refuse to recognize none of the existing and refuse to recognize none of the existing four
4 school of jurisprudence, none of the existing 4 school of jurisprudence, 4 school of jurisprudence, jurisprudence मतलब जो जस्टिस दे, jurisprudence। एक्चुअली इस्लाम में 4 अलग अलग स्कूल कहे गए हैं। ओके, 4 आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से स्कूल्स कहे गए हैं। सर हनफी, मलिकी, शफी एंड हनबली। यस, सर हनफी, मलिकी, शफी एंड हनबली। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और इसमें किसमें जजिया का जिक्र है? सर आई थिंक हनफी में है। हनाफी, हनाफी। ओके, देयर आर 4 डिफरेंट स्कूल्स, 4 डिफरेंट स्कूल्स। बाकी 3 स्कूल्स में आपके सीधे एक ही है, इस्लाम नहीं तो मौत। आप मतलब इनफिडेल्स के आगे सिर्फ 2 ही चॉइस दी जाती है, या तो इस्लाम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो यू विल बी डेड। एक हनाफी स्कूल है जिसने कहा कि ठीक है, ये आपको मिडिवल इंडिया में अभी जो मैम है वो समझाएंगे जब इस्लाम का उदय हुआ होगा। ओके, कि हनाफी स्कूल ने कहा जब मोहम्मद बिन कासिम ने आपके ये सिंध पे कब्जा किया तो वहां मेजॉरिटी तो हिंदूज थे, कितनों को मारोगे? तो हनाफी स्कूल ने इंटरप्रिटेशन दिया कि अगर इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए और वो एक्स्ट्रा टैक्स देने लगे, जिसे बाद में कहा गया जजिया, तो फिर इन ये दे विल बी कंसिडर्ड सेकंड ग्रेड सिटीजन। देन ऑल्सो दे विल बी कंसिडर्ड सेकंड ग्रेड सिटीजन। फर्स्ट ग्रेड सिटीजन सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते हैं, नन अदर देन मुस्लिम्स। और ये जजिया का कॉन्सेप्ट हनाफी स्कूल, 4 स्कूल रहे हैं मुस्लिम्स में, जिनमें सिर्फ हनाफी स्कूल कहता है कि जजिया का कॉन्सेप्ट होगा। बाकी तो कहते हैं नो अदर ऑप्शन, 2 चीज करना, जिंदगी नहीं तो इस्लाम। ओके, नहीं तो खत्म वो चीज, सिर्फ हनाफी स्कूल कहता है। और ये कई बार आपके पीसीएस के कठिन क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जजिया का कॉन्सेप्ट कौन से स्कूल ने कहा है? हनाफी स्कूल ने कहा। ओके, हनाफी स्कूल ने बोला था जजिया का कॉन्सेप्ट। ओके, पर ये जो आपके सैयद मिर्जा हुसैन, ये 4 स्कूल को किनारे करते थे कि ना हदीस हैं और कुरानी है अल्टीमेट अथॉरिटीज। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लिखिए। अब्दुल्ला चक्रलवी, अब्दुल्ला चक्रलवी, नेक्स्ट पर्सन। हाँ, अब्दुल्ला चक्रलवी। बस 2 पर्सन बचे हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। ही फाउंडेड द सेक्ट अहले कुरान, ही फाउंडेड द सेक्ट अहले कुरान, पीपल ऑफ कुरान, सेक्ट अहले कुरान in Punjab in the late 19th century. In the late 19th century, its members are also known as Chakralavis. Its members are also known as Chakralavis. Its members are also known as Chakralavis. They considered only the Quran they considered only the Quran as an ultimate authority on Islam, as an ultimate authority on Islam. Authority on Islam. Next, Ahmad Riza Khan, Ahmad Riza Khan,
RAZ है, रजा खान, अहमद रजा खान, अहमद रजा खान। इन्हें शॉर्ट नेम में बरेलवी, आपने सुन रखा होगा, दो स्कूल्स हैं, देवबंदी और बरेलवी। ओके, बरेली में भी एक स्कूल है इंटरप्रिटेशन का, एक है देवबंदी और एक है बरेलवी। ओके, कई बार तब ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि देवबंदी एक फतवा जारी करता है और बरेलवी उसका उल्टा जारी कर देता है, कई बार ऐसा देखा गया, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, तो बरेलवी स्कूल किसने स्टैब्लिश किया? अहमद रजा खान। ओके, लिख ले क्लास, अहमद रजा खान which was also known as Ala Hazrat, which was also known as Ala Hazrat, Ala Hazrat was born in 1856 in Bareilly district, was born in 1856 in Bareilly district, Bareilly district. Then the part of northwestern province, then the part of northwestern province, part of northwestern province. It's the followers of Ahmad Raza Khan was known as Barelvis. The followers of Ahmad Raza Khan was known as Barelvis. He preached the revival of many old Islamic practice. He preached the revival of many old Islamic practice. Old Islamic practice, and vehemently opposed, vehemently, सर थोड़ा सा इंग्लिश सुधार लो भैया। अभी आपको नहीं लगता, अभी आपको लगता है हाँ हो जाएगा सर, अभी मैं आपको मेंस का एक शीट दे दूं और कह दूं 2 आंसर 250 वर्ड्स में लिख दो, तो सर तब दिक्कत आएगी। आपके दिमाग में मतलब कॉन्सेप्ट होगा, बट यू विल बी नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन राइटिंग। भाई एक्सप्रेस के लिए तो वर्ड्स चाहिए ना, जब वर्ड्स ही नहीं होंगे क्या करूंगा? इफ यू रिमेम्बर 12th फेल में जो कहता नहीं है अपने बारे में 250 वर्ड्स लिख दो, तो कहता सर ये तो बड़ा आसान है, कुछ कठिन दीजिए, कहते यही लिख दो। नहीं, अपने क्लास वो सबसे याद करना, पढ़ना सबसे आसान चीज है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिविल सर्विस क्यों नहीं निकाल पाते? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ राइटिंग, दे डोंट राइट। सिविल सर्विस का मतलब ये मेरे भी नहीं है, दिवकीर्ति सर ने भी कहे थे इन जनरल, वो तो कहते थे कि दिन भर में 8 से 10 आंसर लिखो। मैं कहता हूँ दिन भर में अगर 3 आंसर भी लिख रहे हो ना डेली, बट इट शुड बी मतलब मेंटेन होना चाहिए 3-4 आंसर्स। आपकी धीरे धीरे राइटिंग स्पीड तेज हो जाएगी, फिर आइडियाज आने लग जाएंगे। मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है, आपने क्वेश्चन देखा, सेकंड्स के अंदर आपको आंसर का पूरा फॉर्मेट बनाना है अपने दिमाग में। कौन सा फर्स्ट पार्ट रहेगा, कौन सा इंट्रोडक्शन, कितना बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 और कितना कंक्लूजन, और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर बनना चाहिए, और फिर तुरंत आप लिखने शुरू कर देते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए बच्चों आप लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा सा लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा नहीं पर ध्यान देना। लोअर पीसीएस में भी 100 वर्ड्स लिखने हैं, अपर पीसीएस में भी 250 वर्ड्स लिखने हैं, और आईएएस में तो लिखना ही लिखना है। असिस्टेंट कमांडेंट में एसए लिखना है, आरओ में भी एसए लिखना है। तो सर जितने ऑफिसर वाले जहां आ जाते हैं वहां लिखना ही होता है। एक क्लर्क एग्जाम ऐसा है जहां पे लिखना नहीं होता।
चॉइस आपकी है क्योंकि आप यहाँ ऑफिसर बनने आए। क्लर्क एग्जाम में लिखना नहीं होता। एसएससी क्या है, क्लर्की के तो है, क्लर्किकल ग्रेड की तो एक है, बाबू बनाता है। ओके, पर ऑफिसर्स में आपको लिखना ही होता। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेहेमेंटली मतलब सीवियर, मतलब फियर्सली, he vehemently opposed the Deoband school and its preaching. He vehemently opposed the Deoband school and its preaching. The Deoband school and preaching. He was the follower of Qadri Sufi order. He was the follower of Qadri Sufi order. ऑर्डर, ORDER। अरे सर, सबने एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ी है, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं पर ये प्रोमिनेंट क्या है, सूफी ऑर्डर। मिडिवल इंडिया में सूफी सेंट्स को भी डिवाइड किया जाता था। ओके, निजामुद्दीन औलिया इनमें से कौन से ऑर्डर के थे? चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर वाज द मोस्ट लिबरल ऑर्डर। ओके, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता था। हाँ, सो ये सर ऑल आर सूफीज, ये सभी। आई होप, आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैम ने पढ़ाया होगा। लो सर, फिर और तब हाँ जी सनी जी, आपने नहीं पढ़ा? आप अच्छा एग्जाम देने गए थे 2 महीने? ओके ओके, ध्यान रखिएगा मिडिवल इंडिया में जो सूफीज्म है ना, वो कईयों में सूफी ऑर्डर को क्या कहा जाता था? यस शयंती, द सूफी ऑर्डर वाज नोन एज प्रीलिम्स सिलसिला, सिलसिलाज। ओके, सूफी ऑर्डर को सिलसिला कहा जाता था। जब अकबर रूल कर रहा था, उत्तर प्रदेश पीछे का क्वेश्चन है, कितने सिलसिला थे? 14, मतलब 14 तरह के सूफी सेंट्स थे। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे क्या नहीं होता ना कि आप राम मार्गी हैं, आप कृष्ण मार्गी हैं, जैसे तुलसीदास राम मार्गी, सूरदास कृष्ण मार्गी, तो अलग चैतन्य अगेन वैष्णव सेंट। वैसी सूफीज में भी ऑर्डर्स रहे हैं। नए स्टूडेंट आपसे, आप पुराने लोगों को तो सर मैम ने पढ़ा रखा होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो सूफी ऑर्डर ना पढ़ा है। मिडिवल इंडिया में अकबर का समय याद है, एग्जाम में क्वेश्चन है, 14 सूफी ऑर्डर थे, 14 सूफी ऑर्डर, जिसमें मेन प्रोमिनेंट चिश्ती, सूरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी ऑर्डर थे, मेन ऑर्डर्स ऑर्डर। ओके, चिश्ती वर द मोस्ट लिबरल। क्या क्या आप लोगों को रिवाइज कराऊं? व्हाट वाज, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना आईएएस का, खनक क्या होता था? It is related to Sufi only. खनक सूफी के होम को कहा जाता था, यहाँ सूफी रहते थे, सूफी से खनक। ओके, तो ये सब चीजें अब वही है ना बेटा। अब आप सोचो सर, खनका था। यस खनक या खनका? बेटा इट्स खनक। वो एक्चुअली क्या है, इंग्लिश मीडियम में ए लगा देते हैं और हम लोग प्रोनाउंस करते हैं खनका। कायदे से उनको ये लगाना चाहिए। इट्स नॉट खनका बेटा, खनक। ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना, इट इज नॉट खनका। अगर आपको किसी ने खनका पढ़ाया तो गलत पढ़ाया, इट इज खनक। खनक वो टिपिकल इंग्लिश मीडियम वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशोका, इट्स नॉट अशोका, इट्स अशोक है, रामा। ओके, इट्स अशोक। ओके, अशोक, खनक, खनक। ओके, एंड व्हाट वाज समा, not sama, again related to Sufi. The musical congregation of Sufis, the musical congregation जिसमें कव्वाली और वो सब होता था, उसे if you remember, if you have seen the जोधा अकबर of that उसमें जब वो गोल गोल घूमते हैं ऑल दोस, तो उस महफिल को कहा जाता था
समा, वहीं से तो है कहावत आई है, क्या समा बांध दिया है महफिल, बट इट वाज जस्ट क्लास, बी सीरियस, ओके, नहीं तो अभी मैं फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाऊंगा, ओके ओके गाइस, जस्ट बी सीरियस. समा is related to religious congregation, not for amusement and all those things. It's a religious congregation. आज हम उस चीज को कहते हैं ना, क्या समा बांध दिया, that is, और ये प्रोवर्ब, आज प्रोवर्ब कहावत हो चुकी है, बट समा जो वर्ड है वो रिलीजियस. ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू उठाइए. आजकल मैं आपके पीवाईक्यू स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि कल अगले वीक से या अगले क्लास में मैं एक कुछ समय ना जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अभी मैंने गवर्नर देख रहा था, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही जो अब तक पढ़ा चुका हूं उस पीवाईक्यू में आ चुके. ओके, अभी मेरे को परसों नरसों ने, आपने, आप लोगों को पता नहीं, दोपहर में थे नहीं, अरिहंत वालों ने पूरा सेट दिया है एज अ, मतलब कर्टसी और जो व्हाट, पूरा पीवाईक्यू का सेट. तो आई वाज, संडे को मैं पूरा देख रहा था कि उसमें कितने कितने टॉपिक में, तो देखा कि यार ये तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए, मतलब ये तो गवर्नर का पूरा डिट्टो जो अब तक पढ़ा चुके हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन हो चुके हैं जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं. तो सर मैं परसों नरसों से क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा ये सब चीजें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कैसे क्वेश्चंस बने हैं, सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया कि इसमें जो टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनते हैं. तो पीवाईक्यू उठा के देखो, खनक, समा, ओके, शागिर्द, शागिर्द ऑल्सो इज नोन एज सूफीज रिलेटेड. शागिर्द मतलब डिसाइपल, शागिर्द मतलब डिसाइपल, जो उसका छात्र हो. ओके, तो ये सब सूफी से रिलेटेड है. ओके, तो बरेलवी किस सेक्ट के थे, कादरी सेक्ट को फॉलो करते थे, कादरी सेक्ट को. ठीक है, इनमें से सबसे कठोर, सबसे 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 कंजर्वेटिव सेक्ट कौन होता था, सूरावर्दी, जो हिंदूज को कुछ नहीं मानता था, जो कन्वर्जन को वो देता था. चिश्ती वॉज मोस्ट लिबरल, जो कहते थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन को एग्जिस्ट, दोनों साथ में रह सकते हैं. पर सूरावर्दी वॉज अगेंस्ट. सूरावर्दी ऑलवेज वेंट फॉर रॉयल सपोर्ट, वो राजा, वो सुल्तानों के साथ ही सपोर्ट करता था, और चिश्ती सुल्तानों के साथ बिल्कुल अपोज रहते थे. वो गरीबी में रहना पसंद करते थे, वो सुल्तान से कोई सपोर्ट नहीं लेते थे. हाँ, मटेरियलिस्टिक नहीं थे, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक. सूरावर्दी वाज द मोस्ट मटेरियलिस्टिक. अब क्योंकि क्लास हिस्ट्री वही जैसा करना ऑप्शनल है, तो मैं आपको हिस्ट्री में तो कहीं कोई सा भी टॉपिक समझा सकता हूँ, बट वही ना, अब मेरी भी क्लास थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, और फिर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तो मैं तो बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा. बट वही है ना कि मॉडर्न मिडीवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया इतना बड़े टॉपिक नहीं है कि जितना डिटेल से पढ़ाया जाए. मॉडर्न इंडिया है. लास्ट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन मेरे को आंसर इसका देगा, हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा. सुन तो रखा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा. नहीं सुना है? सर किसने नहीं अल्लामा सुना, जो हाथ खड़ा करे. बी फ्रैंक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. नहीं सुना है? सुन रखा है? किसने बनाया था? सर द अल्लामा नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, ओ मोहम्मद अल्लामा इकबाल. इकबाल. वेरी गुड, अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल. पहले उन्होंने इस सॉन्ग को कहा तराना ए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा. ठीक है, फिर ये जब तक उन्होंने लिखा तब तक वो सेकुलर थे, मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करते थे. फिर जब वो कम्युनल बन गए तो उन्होंने इस सॉन्ग को ही बदल दिया और लिखा एक नया सॉन्ग, तराना ए मिल्ली. मिल्लियत, मिल्लियत का शॉर्ट फॉर्म मिल्ली है, तराना ए मिल्ली. उस मिल्ली मतलब कौमी, कौमी तराना, कम्युनिटी से रिलेटेड. तराना है मिल्ली. चेंज कैसे किया, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा. ओके, मुस्लिम है हम वतन है, मतलब आखिरी में लाइन सारा जहां हमारा. ओके, मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, मुस्लिम्स. तो इनके दो थे, जब वो सेकुलर थे तो तराना ए हिंद बनाया, और जब वो कम्युनल हो गए तो तराना ए मिल्ली बनाया, और उसमें लाइन भी चेंज कर दी. ओके, लिख लीजिए क्लास. लास्ट और एक और, he was the first person who gave the idea of Pakistan, not the idea of Pakistan. वर्ड पाकिस्तान तो चौधरी
रहमत अली ने दिया था, मैं आपको बता चुका, बट ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में। और कहां दिया, अगेन ये सब चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद में। वो बात अलग थी जब ये इलाहाबाद में भाषण दे रहे थे तो मुस्लिम लीग का कोरम भी नहीं था, मतलब कोरम समझते हो ना, एक मिनिमम मेंबर होने चाहिए मीटिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कोरम भी नहीं प्रेजेंट था। पर फिर भी पहली बार सेपरेट स्टेट की डिमांड किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। पर कंट्री की डिमांड नहीं की थी, सेपरेट स्टेट मांगा था, मतलब इस स्टेट को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए जिसमें ऑटोनॉमी दी जाए। पर कॉन्सेप्ट तो वही हुआ ना कि मतलब धर्म के हिसाब से एक अलग स्टेट बनाने की बात थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इट वाज मोहम्मद इकबाल। हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान, आपको बता चुका पाकिस्तान वर्ड बताया था, पर उससे पहले मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद सेशन में आइडिया ऑफ पाकिस्तान दे चुके थे। ओके, पर ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा, ही वांट अ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि उस जगह मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है जो आज पाकिस्तान है, तो इसको एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए विद ऑटोनॉमी। तो अलग देश नहीं मांगा था, सेपरेट स्टेट मांगा था विद मोर ऑटोनॉमी। तो लिखे क्लास मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल लास्ट है, आपकी मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट खत्म होती है, कल वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करूंगा, जरा सा टॉपिक है और कल ही टॉपिक को क्लोज कर दूंगा। ओके, मोहम्मद इकबाल लिखे क्लास, मोहम्मद इकबाल टाइम पीरियड लिख लीजिए 1877 टू 1938, 1877 टू 1938, 77 to 1938. Muhammad Iqbal was a philosopher, poet, author and politician. Muhammad Iqbal was a philosopher, poet, author and politician. Today he is known as National Poet of Pakistan. Today he is known as National Poet of Pakistan. He is philosopher, poet, author. ऑथर के बारे में क्या बोला था, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन. he is known as National Poet of Pakistan. He is given the title अल्लमा, तभी अल्लमा इकबाल कहा जाता है. He is given the title, he has been given the title अल्लमा, तभी वहां मोहम्मद इकबाल नहीं कहा जाता, अल्लमा इकबाल कहा जाता, अल्लमा इकबाल. देखिए मोहम्मद इकबाल emphasized the need for reconstruction of Muslim religious thought, emphasized the reconstruction of Muslim religious thought, reconstruction of Muslim religious thought, in the light of problem, in the light of problem posed by modern world, in the light of problem posed by modern world, light of problem posed by modern world, he criticized those ascetic elements. He criticized those ascetic, A-S-C-E-T-I-C, ascetic elements. He criticized those ascetic elements of religious thought. He criticized those ascetic elements of religious thoughts, ascetic elements of religious thought, which made the man parasitic and indolent, which made the man parasitic, P-A-R-A-S-I-T-I-C, parasitic
and indolent. Indolent, INDOLENT. indolent का मतलब कोई बता सकता है? Sir, lazy. लेजी, जो आलसी हो, इंडोलेंट. देखिए, मोहम्मद इकबाल इनिशियली was of secular mindset. Muhammad Iqbal was of secular mindset. He composed the famous poem सारे जहां से अच्छा. He composed the famous poem सारे जहां से अच्छा. which was known as Tarana-e-Hindi. which was known as Tarana-e-Hind. which was known as Tarana-e-Hind. Tarana-e-Hind. However, after 1920, he became of communal mindset. He became of communal mindset and wrote Tarana-e-Milli. मिल्ली मतलब मिल्लियत, मिल्लियत मतलब कम्युनिटी, कॉम. ओके, Tarana-e-Milli in 1910. 1910 he composed Tarana-e-Milli, which was published after 1920. which was published after 1920. Tarana-e-Milli was a communal poem. Tarana-e-Milli was a communal poem. इसमें लाइन थी, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा. तराना-ए-मिल्ली. ओके, मतलब जैसे अगर आपने सारे जहां से अच्छा पढ़ेंगे तो उसमें मतलब अलग तरीके का है. ओके, बट उसमें तराना-ए-मिल्ली में बाकी लाइन तो एक चीज, एक जो स्टैंजा था वो ये था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा. तो दिस शोज हिज ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कम्युनल. ओके, लिख लीजिए, मोहम्मद इकबाल was the first Muslim leader who in 1930 at Allahabad session, demanded the establishment of northwestern Muslim state in India. Demanded the establishment of northwestern Muslim state in India. मतलब सेपरेट देश नहीं मांगा था, सेपरेट स्टेट मांगा था, बट आइडिया तो आ ही चुका था ना. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट इन इंडिया. हाउएवर, that general meeting of Muslim League did not have even its quorum. Of 75 members. उस मीटिंग में 75 मेंबर भी नहीं थे. quorum of 75 members. तो फर्स्ट आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट was given by मोहम्मद इकबाल. फर्स्ट वर्ड ऑफ पाकिस्तान was given by चौधरी रहमत अली. ओके, मुस्लिम लीग demanded the Pakistan 1940, 23rd March 1940. ओके, तो ये तीन चीजें याद रखिएगा. 1930 में
10 साल पहले 1930 में पहला सेपरेट स्टेट मांगा गया मुस्लिम के लिए। फिर 1932 में पहली बार पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लेके आए चौधरी रहमत अली। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का तान पाकिस्तान, उसमें बंगाल शामिल नहीं था। ओके, पाकिस्तान। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने कहा वी वांट सेपरेट नेशन, टू नेशन थ्योरी। तो 30, 32, 40 पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है ये मुस्लिम का। कल एक जरा सा टॉपिक बचा है, हम एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। मतलब ओवरऑल लास्ट में रिव्यू ऑफ मूवमेंट, मतलब क्रिटिकली एनालाइज। पॉजिटिव आउटकम्स तो बहुत सारे हैं, व्हाट आर द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट? एनीबॉडी इन द क्लास? सर कास्ट नहीं, सॉरी, वेस्टर्नाइजेशन नेगेटिव नहीं, नहीं बेटा। पहली बात, ये मूवमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित रही थी, गांवों तक कोई रीच नहीं थी मूवमेंट की। इलीट क्लासेस ज्यादा, एजुकेटेड क्लासेस तो शहरों तक सीमित थी। इसका नेगेटिव पहलू ये था सर मैम कम्युनल एंगल आने लग गया था। जैसे शुद्धि मूवमेंट, कम्युनल एंगल, कई मूवमेंट ने कम्युनल एंगल लेने लग गए थे, उस कारण से कम्युनल दंगे लगने लगे थे। और हाँ ओके, ये सारा चीज तो वी विल टेक इट, वी विल गिव द फाइनल एनालिसिस। अब तक तो पढ़ा रहा था मूवमेंट कितने तरह की, कौन कौन सी मूवमेंट है। कल मैं फाइनल मेंस का आंसर डिस्कस करूंगा कि क्रिटिकली एनालाइज द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। तो जब क्रिटिकली एनालाइज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होगा तो दो तरह के आंसर लिखोगे। पहले लिखोगे कि मूवमेंट ने क्या क्या किया, और आखिरी में उसे क्रिटिसाइज करोगे कि क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स थे मूवमेंट के। समझ में? तब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। पर उससे पहले मेरे को एक छोटा सा टॉपिक करना है, वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट। कुछ वुमेन, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्लास मैंने आपको कई बार कहा यूपीएससी के लिए एनवायरमेंट, यूपीएससी के लिए वुमेन, यूपीएससी के लिए चिल्ड्रन, यूपीएससी के लिए सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। ये एक ऐसे एरियाज हैं, पढ़ के चले जाना। ओके, तो कई बार स्पेशली आ जाता कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, सिर्फ वुमेन का कंट्रीब्यूशन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में क्या रहा। और क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, या व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या क्या किया। अब आप सोचोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कल मैं आपको पूरा कंपाइल करके दे दूंगा। अगेन मैं कह रहा हूँ क्लास, ये चम्मच से खिलाना हो गया, स्पून फीडिंग। अब इसके लिए बस कम से कम आप मेरे लिए एग्जाम क्वालिफाई कर दो, सो दैट आई कैन हैव मतलब मोर एंड मोर फोटोज। ओके, और उस जगह कल आप, उस दिन तो बहुत कम लोग थे सुबह वाले बैच में, बस वही ठीक है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले। ओके ओके ठीक है, ठीक है। तो विद इन 5 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग विद गवर्नर। थोड़ा आज 20 मिनट का गवर्नर हिस्ट्री ने ले लिया, बट आई हैव टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। ओके, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट वेडनेसडे आई एम स्टार्टिंग विद कास्ट मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट एंड ट्रेड मूवमेंट। चैप्टर शुरुआत होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना शुरू कर देता हूँ, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा। भैया कास्ट मूवमेंट शुरू करने वाला हूं, तो कास्ट मूवमेंट किसके खिलाफ होगी? अपर कास्ट। अपर कास्ट में कौन सबसे ऊपर? ब्राह्मण। तो प्लीज आप लोग में से जो लोग ब्राह्मण्स हैं, ये मत सोचिएगा सर इज अगेंस्ट ब्राह्मण। मैं सिर्फ एक न्यूट्रल तरीके से पढ़ा रहा हूं। कुछ इतिहास में गलतियां हुई हैं, उस चीज को आपको स्वीकारना, हमें और आपको स्वीकारना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं इस क्लास में फेस कर चुका हूं। ओके, हमारे क्या एक दो बच्चे कह रहे थे सर आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैंने कहा, एक स्टूडेंट मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा चुके हैं भरी क्लास में, तो उनको मैंने यही कहा भैया किताबें पढ़ लो, अगर मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं तो भाई तुम कर लो। ओके, पर आंसर में मार्क्स तभी मिलेंगे एग्जाम में जो आप मेरा वाला लिखोगे आंसर। ओके, अपना वो लिखोगे, अपने हिसाब से इतिहास लिखोगे तो नहीं मिलेंगे क्लास। तो प्लीज मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कास्ट। इस चैप्टर को चैप्टर की तरफ से पढ़ेंगे, नॉट पर्सनल मत ले लेना। ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। क्या नेक्स्ट क्लास नहीं अटेंड करनी है क्या? है सर आज गवर्नर के तो वो पढ़ा रहा हूँ। हाँ